introduction. Respected Chief Guest, Professor Dr. Nasir Jamal, Vice Chancellor, University of Malakand, University of Saudi, Chairperson, Department of Pharmacy, my respected Chief Guest, Dr. Humaira Shafi, Dr. Yusra Javed, my respected faculty members, and my dear students, a very warm welcome as well as good morning to all. So, as you know, the diabetes mellitus, it is also known as the diabetes, which is mainly characterized by the high blood glucose level, and is mainly characterized by some signs and symptoms. But before this disease, this is due to welcome to the next guest speaker, Dr. Yusra Javed. Have a seat. So diabetes mellitus is actually due to the pancreas. The pancreas is unable to produce sufficient quantity of insulin, and sometimes the body cell is unable to respond with the level of insulin. So the classical symptoms include polydipsia, polyuria, weight loss, and some blurred vision. So if the disease is not treated properly or appropriately, so it can damage the major vital organ in the form of cardiovascular system. Liver, it can also damage the liver functions, renal function, as well as causing some neuropathies. So approximately 1.5 million of the population, they are suffering worldwide from this debilitating kind of diseases. So further the Dr. Yusra Javed, she is a consultant in pathology from Chottai. She will share her expertise, her knowledge, her skills with the diabetes mellitus. And further, I extend my thankful to Honorable Chairperson, Department of Pharmacy, who guided me, who motivated me for so many times to arrange such kind of seminars, such kind of workshops at departmental level. And I really thankful to Chottai, Mr. Ibrahim Zaid, who arranged this seminar with collaboration with the University of Saudi. So I need your attention as well as patience during the sessions. So thank you all. Assalamu alaikum and good morning to all. Before we begin, I would like to introduce myself a little bit. I am Mohammad Staniyaz and I am from Second Group, Department of Pharmacy at University of Saudi. And ladies and gentlemen, it is now time that we begin the first session of this seminar by introducing our first speaker, Dr. Humaira Maktoum. Dr. Humaira Maktoum is Pakistan's first female forensic toxicologist and currently serving as a chief toxicologist at Chottai. She owns gold medal in MPhils and Bachelors of Pharmacy, and she's followed by a successful PhD scholar. I would like to call Dr. Humaira on stage to serve his responsibilities and represent her knowledge on diabetes mellitus and clinical toxicology. And put your hands together, ladies and gentlemen, and welcome Dr. Humaira. Assalamualaikum. I am unable to hear you. Assalamualaikum. कैसे हैं आप लोग? First of all, I would
सके और उसके बाद आप अपनी फील्ड को या प्रोफेशन को पूरा करें, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू योर फील्ड, योर प्रोफेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो टुडेज टॉपिक इज ड्रग ऑफ अब्यूज अवेयरनेस। सो हम देखते हैं कि इसमें मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी, बिकॉज यू ऑल आर फार्मासिस्ट, तो आपको ड्रग्स के बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए, आई एक्सपेक्ट, ठीक है। तो मैं कुछ आपसे भी सीखना चाहूंगी आज, ठीक है। बहुत ज्यादा आपने इंटरेक्ट
ठीक है। अब ये ओपिएट एनाल्जेसिक्स जितने हैं ये पेन किलर के तौर पे यूज होते हैं, फॉर द सीवियर पेन मैनेजमेंट यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनका अब्यूज पोटेंशियल ज्यादा है तो ये आ गए कंट्रोल सब्सटेंसेस में, यानी ड्रग ऑफ अब्यूज में, और इनको आप फार्मेसी में जाके डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। आप फार्मेसी में जाए आपको कोई मॉर्फिन देगा नहीं, बिकॉज इट इज ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप नहीं ले सकते और ये नारकोटिक्स में आता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज हो रही है तो कहाँ हो रही है? आम तो नहीं हो रही। इन कैंसर पेशेंट्स फॉर द सीवियर पेन मैनेजमेंट मॉर्फिन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। आप ये शौकत खानम हॉस्पिटल जो है, इवन वो लोग भी पेन मैनेजमेंट के लिए मॉर्फिन यूज कर रहे हैं, बट अगेन अंडर नारकोटिक एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है। सो अब आपको क्लियर हो गया है डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड ड्रग ऑफ अब्यूज। वेरी गुड, नेक्स्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, आज आपने कुछ चीजें तो मैंने यहाँ पे लिखी है बट दी रेस्ट यू विल ऐड ऑन। क्या वजह है हमारे स्टूडेंट्स में, हमारी न्यू जनरेशन में ड्रग्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है? मैं वन बाय वन बोलती हूँ और अगर मैंने कोई चीज मिस की है तो आपने मुझे आज यहाँ से ऐड करवानी ताकि मैं कहीं जाके कह सकूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी के स्टूडेंट्स ने मुझे ये चीज ऐड करवाई थी, ठीक है। सो देखते हैं क्या रीजंस हो सकते हैं। टू फील ओल्डर, व्हाट इज इट? मतलब स्कूल आपका खत्म हुआ और आप कॉलेज में आए, यू फील कि मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ बाप कुछ कह रहे हैं, नहीं मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे सब समझ आती है, मैं बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो फील है अपने आप को एकदम से बड़ा और मैच्योर समझने की। देन टू फील कूल, बड़े भी प्यारे लग रहे हैं सिगरेट हाथ में पकड़ के, पर्सनैलिटी एनहांस हो गई है, ठीक। देन टू फील डिफरेंट, दूसरों से अलग नजर आना। पीयर प्रेशर, व्हाट इज पीयर? नाशपाती? नो, व्हाट इज दिस पीयर? पीयर क्या होता है? आपकी फैमिली भी पीयर हो सकती है, आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके क्लास फेलोज भी हो सकते हैं, ऐसे सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और जिनके होने से आपकी जिंदगियों पर असर पड़ता है, ठीक है। दे आर ऑल पीयर्स, ठीक है। अब मुझे ये बताएं पीयर प्रेशर कैसे आएगा? दो सिगरेट पी रहे हो, आपको कहता है कि जी चलो तुम भी सिगरेट पी लो, कुछ नहीं होता। आप कहते नहीं जी मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना किया, मैंने नहीं पीनी, ये अच्छी चीज नहीं है। वो कहते चलो एक दफा ट्राई तो करो, एक दफा करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। दिस इज पीयर प्रेशर। आपकी फैमिली में कोई सिगरेट्स या ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है और आप उसको देख के उन्हीं चीजों की तरफ जा रहे हैं या उनके कहने पर जा रहे हैं, तो दिस इज ए पीयर प्रेशर, ठीक है। क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं है कि इन्होंने आपके साथ नुकसान क्या करना है और आप सिर्फ उसकी बात में आके उसको ट्राई करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आप उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो। देन मीडिया इन्फ्लुएंस है। मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट्स में, मूवीज में दिखा रहे होते हैं शराब की ग्लासेस या सिगरेट, सिगार या आजकल वेप्स, ठीक है। तो उसको देख के बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं हमारे बच्चे, ये पता नहीं कौन सी चीज है और इससे हमें क्या एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी। देन फ्रेंड्स एंड फैमिली सेलिब्रेशंस, कोई बहुत ही बड़ी खुशी, हम पास हो गए हैं, नेक्स्ट क्रॉप में चले गए हैं, तो हम कोई पार्टी करें, ठीक है, और फिर हम कहीं घूमने फिरने जाएं, चलो वहां पर थोड़ा सा ड्रग्स वगैरह ले लें, इंटरटेन हो जाए, ठीक। सिमिलरली टू रिलीव स्ट्रेस, ये बताओ ये है आप लोगों को किस चीज का स्ट्रेस? मैं
drug of abuse raised in the era of COVID. ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनली, नॉट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी सबसे ज्यादा ड्रग अब्यूज इन्हीं दिनों में हुआ। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता, आप आइसोलेट हो जाते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो आप फिर ऐसी चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं कि जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। ठीक है, देन पोस्ट